Yes, good morning to all. Good morning, Good sir. morning, sir. Good Good morning, morning. sir. In yesterday lecture, we discussed the beat of gastrointestinal tract that we first started the acidifier. Now that acidic happening in stomach. है ना? This specifically present in condition where the insufficient secretion or inadequate secretion of gastric acid in a stomach. है ना? So in that case, we prefer the acidifier. है ना? But there are the range of acidifier that available in the market that are again subdivided or classified into the gastric acidifier, then urinary acidifier, systemic acidifier, and acid. है ना? Each class having their own importance. है ना? For example, in case of urinary acidifier, is specially used in a urinary tract infection. है ना? Systemic acidifier that are used specially in a systemic alkalosis when there is imbalance of acid base. है ना? In that case, use or prefer the systemic acidifier. है ना? Systemic alkalosis में. Or the acid that's specially used in a various purpose, like for the synthesis of various compound, then quality control purposes and preparations or different methods that involve the acids. Or gastric acid, in that we are more interested, that is a gastric acidifier. These are the compound that specially used in case of the achlorhydria or hypochlorhydria, the condition in which the inadequate secretion of a hydrochloric acid, that may lead to the various problems that already we discussed in the previous lecture. So if you see the syllabus of your first year of PIC, in that the two agent mentioned in your syllabus, that is the ammonium chloride, and second one is the dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज द डाइल्यूट HCl. है ना? तो उसमें से हम देख रहे हैं अमोनियम क्लोराइड. है ना? आई थिंक ऑल ऑफ यू ऑलरेडी फैमिलियर विद द इंडियन फार्माकोपिया. है ना? Yes, इंडियन sir. फार्माकोपिया, द written, that is the book that containing all the information, detailed thorough information of a drug and method of the preparation and analysis. है ना? तो उसमें एक monograph that containing the thorough detailed documented information of a particular drug. है ना? तो उसका एक हमने ना प्रोटोकॉल देखा था, एक उसका है ना एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कैसा रखा था, एक इंडिविजुअल का वो देखा था. द कंटेंट ऑफ मोनोग्राफ, देखो बी डिवीजन में मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिया था, व्हाट एवर द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ऑन हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, उसमें एक क्वेश्चन भी था, जस्ट राइट डाउन द और मेंशन द कंटेंट ऑफ मोनोग्राफ. है ना? तो द मोनोग्राफ कंटेनिंग द टाइटल्स, then structure, then synonyms, molecular weight, methods of preparation, identification test, assay, storage, solubility, everything is cover. है ना? तो likewise same we cover the each compound. है ना? तो जैसे दो हमारे compound है अमोनियम क्लोराइड. है ना? I tried my best level to cover all the points, whatever the important points in ammonium chloride. But still you find something is missing, you should cover this point from the IP. है ना? Ammonium chloride. So method of preparation, there are the n number of the method of preparation. Out of that, the first one is when ammonia and hydrochloric acid both treated with each other and the solution get evaporated. है ना? Finally we got the crystal of ammonium chloride. है ना? So this ammonium chloride may containing the some sort of impurity that is called as the crude ammonium chloride. है ना? This crude ammonium chloride purify maybe the different by the different way, like the recrystallization. है ना? उसको फिर क्या करते हैं, recrystallize करके we get the final pure ammonium chloride. Next method is when treating the ammonium sulfate. अमोनियम सल्फेट देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला NH4 2SO4, that is ammonium chloride is treated with a sodium chloride. It give the ammonium chloride. है ना? इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होता है, सोडियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, और दूसरा फॉर्म हो रहा है अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट अगेन इट इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड फाइनली वी गॉट द अमोनियम क्लोराइड. है ना? इसको भी क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे बाय द
recrystallization. Then the properties, ये डिस्कस किया था हमने, अमोनियम क्लोराइड इज अ वीक इनऑर्गेनिक एसिड है ना, बिकॉज इट इज यूज इन केस वेयर द लेस एसिड इज सिक्रीटेड है ना, inadequate secreted, तो acidify यहाँ पर है, तो white crystalline powder है, freely soluble in water, slightly soluble in alcohol, hygroscopic in nature means it absorbs the moisture from the environment, odorless, not having the any particular odor, और isotonic solution है with serum of 0.8% weight by volume. Excuse me, sir. Identification test, yes. Sir, what is mean by serum? Serum plasma जो रहता है ना, blood is one of the content of a blood. Serum is nothing but the content of blood है ना. जैसा देखो, I think already you heard the word of blood. In that the various component like the platelet रहता है, WBC रहता है, RBCs रहता है ना, और एक प्लाज्मा रहता है ना. ब्लड Yes, sir. आपने ब्लड कलेक्ट देखा होगा, ब्लड है ना, आफ्टर सम टाइम ब्लड गेट क्लॉट, ब्लड क्या हो जाता, पूरा के पूरा क्लॉट हो जाता, और जो सुपरनेंट जो रहता है ना, वो पूरा है ना सॉलिड सेमी सॉलिड मास रहता है, और जो नीचे का जो रहेगा ना, तो प्लाज्मा, दैट इज अ प्लाज्मा है ना. एक तो एक ऊपर है, आई थिंक दैट इज अ अपर पार्ट ऑफ अ प्लाज्मा, दैट इज कॉल्ड एज अ. एक और ये भी डिस्कस किया था हमने, केमिकल आइडेंटिफिकेशन. दीज आर द मेथड फॉर बाय व्हिच वी कैन आइडेंटिफाई द compound. For example, any industry that are engaged in a synthesis of ammonium chloride powder or ammonium chloride tablet that are used in a chlorhydria condition है ना, तो उसको किसी वेंडर ने ना सप्लाई किया है अमोनियम क्लोराइड, तो फर्स्ट ही चेक द whether the provided sample is ammonium chloride or something else है ना, तो उसके लिए this test are performed for identification whether the given compound is ammonium chloride, because just see near about more than 80-90% of chemical are white in nature or off white in nature है ना, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए these methods are prefer for identification है ना. Out of that the first one is the methyl chloride test, and second one is the chemical test that is the silver nitrate. आपने है ना इसके पहले भी प्रिंसिपल देखा होगा, क्लोराइड लिमिट टेस्ट है ना. whatever the sample, unknown sample is treated with a silver nitrate in acidic media, और उसको में क्या करते हैं 2 मोलर नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं. Now the assay method क्या रहती है? Anyone just tell me the definition of assay. What is assay? Percentage of purity. Percentage purity है ना. Percentage purity. Determine percentage purity. The procedure by which we can determine the percentage purity है ना, means how much the given compound is pure है ना, means anything is that is unintentional, anything that is uninterested. Deepak Jaiswal, yes, anything that is uninterested or unintentional, that is called as the impurities है ना, means जो हम चीज में इंटरेस्ट है उसके अलावा कुछ दूसरी चीज रहेंगी आपके जो कंपाउंड में, तो दैट इज कॉल्ड एज द impurity है ना. तो ऐसे प्रोसीजर से हम वही फाइंड आउट करते हैं हाउ मच द गिवन कंपाउंड इज प्योर है ना, और फिर उसमें उसके बाद में अदर क्या रहता है, उसमें impurities रहती है. तो डिटर्मिनेशन ऑफ द परसेंटेज प्योरिटी है ना. So there are the previously the assay of ammonium chloride is performed by the Woolard's method, है ना. But now the assay of ammonium chloride is performed by the acid base titration. Woolard's method क्या रहती है? Back titration या blank titration है. It is the compound is titrated with a silver nitrate है ना, because it containing the chloride. तो क्या फॉर्म होता है? व्हाइट कलर की पीटी फॉर्म होती है. When then we add the excess amount of the silver nitrate, that is find out with the help of ammonium thiocyanate or potassium thiocyanate, or ferric or iron is added as a indicator है ना. ये Woolard's method में प्रोसीजर थी. But now the assay of ammonium chloride is performed by the acid base titration है ना, because ammonium chloride is acidic in nature, और इसको टाइट्रेट करेंगे बेस से है ना. सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइक द सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया है ना. बट whatever the base suggested by the IP, that only we can
प्रेफर फॉर द एसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड, है ना। तो यहाँ पे प्रोसीजर दिया है, वो द प्रोसीजर ऑफ एसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज दैट about 0.1 gram of ammonium chloride accurately weigh and kept in a conical flask, है ना। क्या करना है हमको, सब में पहले 0.1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लेना है and just transfer it into the conical flask, then add 50 ml of water and dissolve the compound, है ना। It followed by the 5 ml of formaldehyde solution, 5 ml of formaldehyde solution। क्या रहता है यहाँ पे, हम जब जो वाटर भी ले रहे हैं तो दैट शुड बी फ्री फ्रॉम द दैट इज प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर लेते हैं ना। तो अमोनियम क्लोराइड लेना है हमको और उसमें 50 ml ऑफ वाटर ऐड करना है ना। और उसको न्यूट्रलाइज करना है फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन है। फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में हैव द स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉर्मिक एसिड, न्यूट्रलाइज फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन, है ना। तो फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में हैव द स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉर्मिक एसिड फॉर्म ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। आई थिंक ऑलरेडी यू aware that the alcohol oxidize into the aldehyde and aldehyde oxidize into the acid, है ना। आपने डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट ऑफ अल्कोहल पढ़ा होगा ना 11th-12th में, आई थिंक। यस, हेलो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो क्या होता है, Yes, sir. अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करे तो क्या होता है? Volatildehyde. Acid. हाँ नहीं, ऑक्सीडाइज अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, फर्स्ट ऑफ ऑल इट गिव द कार्बोनिल कंपाउंड, है ना। जैसा है ना, अल्कोहल प्राइमरी रहा तो अल्डिहाइड रहेगा, सेकेंडरी रहा तो क्या रहता है, कीटोन फॉर्म होता है। और ये जो अल्डिहाइड और कीटोन रहता है, इसको इफ इट इज फर्दर अंडरगो द ऑक्सीडेशन इट गिव द करस्पॉन्डिंग एसिड, है ना। तो वही यहाँ पर क्या बोला है, टेक द अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड दैट इज 0.1 ग्राम, उसको डिसॉल्व करना है 50 ml ऑफ प्योर वाटर में और उसमें ऐड करना है 5 ml ऑफ न्यूट्रलाइज्ड फॉर्मल्डिहाइड, है ना। क्या बोला यहाँ पे, न्यूट्रलाइज फॉर्मल्डिहाइड बोलो तो जो फॉर्मल्डिहाइड ऐड करेंगे आप 5 ml, दैट शुड बी द न्यूट्रल। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, ये फॉर्मल्डिहाइड है ना, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन से क्या फॉर्म होता है, फॉर्मिक एसिड कन्वर्टेड इनटू द फॉर्मिक एसिड बाय द atmospheric oxidation converted into the formic acid. So that should be the formaldehyde should be the neutral. So this should be carefully neutralized with the help of dilute sodium hydroxide solution. इसको पहले ही क्या करना है, before adding the 5 ml of formaldehyde, first of all check the pH of formaldehyde whether it is neutralized or acidic. If it is acidic, then it should be neutralized, carefully neutralized with the help of dilute sodium hydroxide solution, है ना, यूजिंग द फिनोल्फथालीन एज अ इंडिकेटर, है ना। फिर इसके बाद जैसे न्यूट्रलाइज होता है तो 5 ml उसमें ऐड करना है। आफ्टर कीपिंग असाइड फॉर अ कपल ऑफ मिनट, जस्ट 2 to 3 minutes और 5 minutes जस्ट उसको असाइड रखना है। देन लिबरेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मेड to titrate with a standard sodium hydroxide solution by adding some more phenolphthalein indicator, है ना। तो क्या होगा, जैसे ही हम, है ना, तो अमोनियम क्लोराइड जैसे देखो यहाँ पर दिख रहा है, अमोनियम क्लोराइड हम, है ना, 50 ml वाटर में ऐड कर रहे हैं और उसमें पैरेलली क्या कर रहे हैं हम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसमें। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो फॉर्म होता है ना, तो दैट अगेन दैट इज इंटरफेयर इन अ रिएक्शन बिकॉज अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन अल्कलाइन इन नेचर। तो इसको क्या करते हैं, इसको न्यूट्रल, इसको थोड़ा सा, है ना, इसकी मास्क करने के लिए वी एडेड द फॉर्मल्डिहाइड। दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड जैसे इंटरेक्ट होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, फॉर्मेशन ऑफ अ हेक्सा डिहाइड। समझ में आ रहा है यहाँ पर आप क्या आ रहा है यहाँ, फॉर्मल्डिहाइड इन अ एसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड, है ना। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है, टू मास्क द एक्टिविटी
hydroxide. Otherwise, ammonium hydroxide is basic in nature. Again, it interfere in a assay of ammonium chloride. So this point should be note down. Note down किया आपने ये point? Here it react with ammonium hydroxide and formation of a hexamine. That is a formation of a neutral compound. That is not interfere in a assay of ammonium chloride, because this procedure is based on a acid base interaction. Acid तो क्या है ammonium chloride और base क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसके साथ में हम टाइट्रेट कर रहे हैं. जैसे देखो, आफ्टर कीपिंग असाइड whatever the liberated hydrochloric acid is made available and titrated with a sodium hydroxide, है ना. 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ क्या करना है, इसको टाइट्रेट करना है. फिनोप्थिलीन एज अ इंडिकेटर. पर्पल कलर आता है उसका उसका है ना. एसिडिक कंडीशन में क्या रहता है, कलरलेस रहता है, और अल्कलाइन कंडीशन में पर्पल कलर आता है उसका, है ना. तो दिस इज द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एसिड प्रोसीजर. अमोनियम क्लोराइड दैट इज डिसॉल्व इन अ क्या अमोनियम क्लोराइड डिसॉल्व इन 50 ml ऑफ वाटर. तो क्या फॉर्म होता है वहां पर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, HCl फॉर्म हो रहा है यहाँ पर. HCl जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, दैट इज अल्कलाइन इन नेचर और बेसिक इन नेचर. तो दैट इज इंटरफेयर इन रिएक्शन, और रिजल्ट में क्या हो रहा है, इसको फॉल्स रिजल्ट आएगा. इसके लिए, इसको मास्क करने के लिए वी एडेड द फॉर्मल्डिहाइड. समझ में आ गया आपको इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, व्हाई वी एडेड द 5 ml ऑफ फॉर्मल्डिहाइड. यस. जब फ्राइडे समझ में आ यस. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, now the whatever the formation of HCl is added with the ammonium sodium hydroxide, है ना. सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे. इसमें क्या रहता है, तो कलर चेंजेस फ्रॉम कलरलेस टू पर्पल कलर होता है उसका, है ना. देखो यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया है. द अमोनियम क्लोराइड अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू यील्ड द अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना, HCl. द रिएक्शन इज फैसिलिटेटेड फॉर एडिंग द फॉर्मल्डिहाइड as it fix the ammonia by forming the hexamine. यहाँ पे जो hexamine form है, the acid can now titrate it with the alkali without interference. This reaction can be represented, है ना. यहाँ पे देखो पिक्टोरियल फॉर्म में दिया है. यहाँ पे देखो, ये यहाँ पर से भी आपकी जब भी समझ में आएगा क्या हो रहा है यहाँ पे. एसिड फॉर्म में कलरलेस और अल्कली में पिंक, वो पर्पल. ये देखो, ये जो पिक्चर फॉर्म पे भी आप है ना, प्रोसीजर आपको लिखना पड़ती है. देखो ये जो दिख रहा है ये आपको, एक मिनट, ये जो प्रोसीजर है यहाँ पर, ये प्रोसीजर जो है ना, you have to reproduce in your answer book, है ना. just write down the essay और discuss in short the ammonium chloride. तो उस टाइम में आपको ये प्रोसीजर लिखना है. तो इसको कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ पे बहुत अच्छा है. just take the 0.1 gram of ammonium chloride, 0.1 gram of ammonium chloride, add 50 ml of water, then add 5 ml of formaldehyde and add 1 to 2 drop of phenolphthalein. Everything is taken in a conical flask. Now titrated with a 0.1 sodium hydroxide. The color changes from colorless to faint pink color, है ना. और यहाँ पे देखो फैक्टर दिया है कैलकुलेशन के लिए. That is the each ml of 0.1 normal sodium hydroxide is equivalent to the 0.005349 gram of ammonium chloride. तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमको है ना उसका परसेंटेज प्यूरिटी पता चल जाएगा.
फिनोल्फथालीन इंडिकेटर इज कलर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द पीएच, है ना। देखो यहाँ पे एसिडिक में कैसा रहता है, ये कलरलेस रहता है, और जैसे अल्कलाइन में होता है तो क्या होता है, ये फेंट पर्पल कलर होता है इसका, है ना, फेंट पिंक टू पर्पल कलर रहता है। टेस्ट फॉर प्यूरिटी भी देखो आपने ना, आई थिंक ए डिवीजन का है ना, इम्प्यूरिटीज, सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटी पढ़ा होगा ना आपने, पढ़ा है? Yes, sir. हाँ, तो Yes, sir. based on the origin, the impurity is based on the origin or source of a compound, है ना। तो इसीलिए the ammonium compound may be the sources that containing the or raw material may be the containing the arsenic, sulfate, heavy metals और आयन। तो इसीलिए है ना, टेस्ट फॉर प्यूरिटी परफॉर्म करते हैं इसकी। arsenic should not be more than 2 ppm, sulfate should not be more than 150 ppm, and calcium should not be more than 200 ppm. Iron should not be more than 20 ppm, and heavy metal should not be more than 10 ppm. Loss on drying should not be more than 1%. All these are the percentage purity, test for purity, है ना। यूज क्या है इसका अमोनियम क्लोराइड का? ऑब्वियस एसिडिफायर है ना, और मेटाबॉलिक अल्किलोसिस में इट इज यूज्ड इन अ मेटाबॉलिक अल्किलोसिस। अगेन इट आल्सो यूज्ड इन अ Sir. एक्सपेक्टोरेंट। हाँ बोलो सर ये अल्कलोसिस नहीं समझा सर ये। क्या होता है, हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म है बाय विच वी कैन मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस बाय द कार्बोनिक बफर। कार्बोनिक बफर सिस्टम से हमारे बॉडी का देखो, सलाइवा का पीएच एक अलग रहता है, स्टमक का पीएच अलग रहता है, फिर उसके बाद में ब्लड का पीएच अलग रहता है, फिर उसके बाद में लैक्रिमल सिक्रीशन का पीएच अलग रहता है क्या नहीं? यस सर। तो ये एवरीथिंग इज मेंटेन बाय द बफर सिस्टम। एक बफर सिस्टम है हमारा नेचुरली बॉडी का, तो दैट मेंटेन द पीएच। बट बाय समथिंग अनसर्टेन हैपनिंग, है ना, ड्यू टू द एक्सेसिव ऑफ, जैसे देखो आपने सुना भी होगा घर में क्या, डोंट यूज द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट जो रहता है ना, जिसको क्या बोलेंगे, बेकिंग सोडा सुना है नाम? यस सर। जो केक में डालते हैं या अदरवाइज है ना, जो वेरियस जिसमें ना पफीनेस आने का है, जैसे जो भजिए वगैरह हो गए, या फिर उसके बाद में जो अलग अलग चीजें रहते हैं, तो उसमें ना डालते हैं बेकिंग सोडा डालते हैं, तो वो उससे क्या होता है, पफी होता है कुछ भी चीज जो। पर एक्सेसिव जब अमाउंट में जब हम यूज करेंगे उसको, या सर्टेन अमाउंट के बाद में उसको जब ज्यादा एक्सेसिव यूज करेंगे ना, दैट इज अल्कलाइन इन नेचर रहता है, दैट इज अल्कलाइन नेचर रहता है उसका। तो वो अल्कलाइन का भी ज्यादा हमने ले लिया ना, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वो क्या करते हैं, दो डिजोल्व एंड डायरेक्टली एंट्री इनटू द ब्लड। वो क्या होता है, डायरेक्टली वो डिजोल्व होता है वाटर में, और वाटर में डिजोल्व होने की वजह से क्या होता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब होने की वजह से क्या होता है, इट इंक्रीजेस द अल्कलिनिटी इन अ ब्लड। ब्लड में क्या हो जाएगा फिर, वो अल्कलाइन करेगा क्या नहीं ब्लड को? करेगा, अल्कलाइन करेगा। हाँ, तो उसकी वजह से ना फिर एसिड बेस बैलेंस जो बॉडी का है, तो वो पूरा के पूरा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो यस उसकी सर। वजह से देखो ये सिम्टम है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के सिम्टम क्या है, न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी, टिटैनिया हो गया, एबनॉर्मल हार्ट रिदम हो गया, कोमा हो गया, सीजर्स हो गया, ऑल सीजर्स हो गया, ऑल दीज आर द एक्सपेक्टेड इन अ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। कभी है ना अल्किलोसिस होता है, मेटाबॉलिक अल्किलोसिस, तो वो कंडीशन में भी क्या करता है, एसिडिफायर उसको प्रिस्क्राइब करके या सजेस्ट करके उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, या मेंटेन द बफर ऑफ अ natural buffer in a range of a corresponding 7.3 to 7.45. सर yes, सीजर्स मतलब सर? ये जो झटके आते हैं ना ग्रैंड माल इपिलिप्सी में, उसमें उसको बोलते हैं। देखो जो छोटा बच्चा रहता है, या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, या अल्किलोसिस मेटाबॉलिक अल्किलोसिस की वजह से भी क्या होता है, सीजर्स होते हैं, बोले तो झटके आते हैं, सुना होगा ना झटके आते हैं, देखो छोटे बच्चे को, या जो इपिलिप्सी में आते हैं वो, यस सर। उसको बोलते हैं। उसके वजह से भी होता है, मेटाबॉलिक अल्किलोसिस से भी होता है। और देखो अभी जो आपका है ना मिसलिनियस मैडम पढ़ा रहे हैं, आपका एक्सपेक्टोरेंट हुआ है आपका? Yes, sir. हाँ, एक्सपेक्टोरेंट में भी आपने देखा होगा कि अमोनियम क्लोराइड इज यूज्ड एज अ एक्सपेक्टोरेंट, है ना? यस सर। Yes, हाँ, sir. अमोनियम क्लोराइड इज आल्सो यूज्ड एज अ expectorant. Now the second one is the dilute hydrochloric acid. The second compound
of acidifier is dilute hydrochloric acid with a molecular formula of HCl. Molecular weight is 36.46094 gram per mole. Method of preparation क्या है इसका? Hydrochloric acid is added. The concentrated hydrochloric acid is gradually added to the water and mixed, है ना? ये अलग अलग परसेंटेज में रहता है, 5%, 10% और dilute hydrochloric acid जो भी है तो प्रिपरेशन है ना. प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज अ कलरलेस लिक्विड, स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.04 to 1.05, है ना. टेस्ट फॉर प्यूरिटी इट हैज बीन टेस्टेड फॉर द आर्सेनिक, हेवी मेटल्स, ब्रोमाइड, आयोडीन, सल्फेट एंड फ्री क्लोराइड, है ना, बेस्ड ऑन अ सोर्सेस, है ना. दिस टेस्ट फॉर प्यूरिटी इज परफॉर्म. आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है इसका? गिव ऑल द रिएक्शन ऑफ क्लोराइड, जैसे अमोनियम क्लोराइड के साथ में इसको अगेन सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या रहेगा? वो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, फॉर्मेशन ऑफ टर्बिडिटी, है ना. तो दैट इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट. अगेन द सेकंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इज व्हेन ट्रीटेड विद पोटेशियम परमैंगनेट द क्लोरीन गैस इज इवॉल्व्ड, है ना. जब हम पोटेशियम परमैंगनेट दैट इज KMnO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या मिलता है हमको? दैट गिव द करस्पॉन्डिंग chlorine gas, evolved the chlorine gas. Now storage condition, it should be stored in a well closed container at a temperature not more than 30 degree Celsius, है ना. जैसा देखो हमने ना मोनोग्राफ में पढ़ा था, स्टोरेज कंडीशन भी एक मेंशन किया है. तो द स्टोरेज आइडियल स्टोरेज कंडीशन शुड बी स्टोर इन अ क्लोज्ड कंटेनर एंड टेम्परेचर शुड नॉट मोर देन 30 degree Celsius. डोज क्या है इसका? 5 ml of dilute HCl added to the 20 ml of water that give the 15 milli equivalent of acid, है ना. use as a acidifier. Caution क्या है? Drinking with a straw is recommended to avoid the direct exposure of HCl with a dental enamel, है ना. dental enamel is usually the 80% of a calcium, और ये कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाएगा? उसको डिसॉल्व कर देंगे वो, है ना. एकदम पूरे पैचेस फॉर्म हो जाएंगे. दैट्स व्हाई द कंपाउंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिक्विड शुड बी इन एसिड एज एसिडिफायर with a straw, है ना. ड्रिंकिंग स्ट्रॉ से डायरेक्टली सक कर लिया ना तो नॉट कांटेक्ट विद व्हाटएवर द टीथ, है ना. तो डेंटल इनेमल से भी नहीं होना. ये देखो ये मार्केटेड प्रिपरेशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, है ना. देखो यहाँ पे क्या है? 5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड. देखो यहाँ पे ना डेंजर, अवॉइड द कांटेक्ट विद द आई, है ना. पुट डायरेक्टली डोज इन अ माउथ. So this is the हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज अ एसिडिफायर. मैं क्या करता हूँ? देखो अभी ना 6-7 मिनट बाकी है, इसको ये मीटिंग को एंड करता हूँ और रीस्टार्ट करता हूँ. मैंने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ओके ओके Okay, sir. Yes, sir. हाँ.